Hello dear students, this is our SST video. Today I am going to introduce our third chapter, India Physical Features. In this chapter we will learn about physical features of India, northern mountains, northern plains, Great Indian Desert, peninsular plateau, coastal plains, islands. Students, identify these pictures and tell the names. What are these? These are mountains, and what is this? This is desert. India has great variety of physical features. In this chapter, we will explore the physical features of India in detail. इंडिया के पास बहुत से फीचर्स हैं, बट कुछ फीचर्स हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Firstly, you have to know about what are physical features. Physical features means like mountains, desert, islands. Physical features of India. Students, let us know first that what is physical feature. Just like our body has some features like our body has eyes, nose, hands, legs. These are the features of our body. Similarly, दिस इज़ नोन एज फिज़िकल फीचर्स. हमारी बॉडी के फीचर्स हैं कि बॉडी के पास क्या क्या चीज़ें हैं. हमारे पास क्या हैं? हैंड्स, लेग्स, आइज़, नोज, ईयर्स. दीज आर द फीचर्स. सिमिलरली इंडिया के पास भी कुछ फीचर्स हैं, फिज़िकल फीचर्स हैं. मीन्स इंडिया की बॉडी कैसी है, किन चीज़ों से बनी है. इंडिया हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, peninsular plateau, coastal plains, islands. These colors have their own importance. Let us see what does this color mean. इन colors का क्या meaning है, हम पहले ये देख लेते हैं. The area which is colored this, that is northern mountains. Let us see where are northern mountains. You can see here, these are the northern mountains because here the color is same. You can look in your book also. Match the color. This is the area of northern mountain. Then northern plains, the area which is colored with light green. This is northern plain. Then southern plateau, the area which is colored in this color is known as southern plateau. Then Great Indian Desert, the area which is colored with yellow is Great Indian Desert. Here you can see this is the desert. Coastal plains, coastal plains are colored with green color. These are coastal plains. Let us observe some other objects of the map. Arabian Sea, Bay of Bengal, Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, India, Indian Ocean, Northern Mountains. In map we have observed what are northern mountains. Let us see the meaning. A very high hill with steep slopes and a tip is called a mountain. To the north of India lies the northern mountains or the Himalayas. माउंटेन्स को हिंदी में हम पहाड़ कहते हैं. माउंटेन्स इस शेप में होते हैं. ये स्लोपिंग होते हैं, स्लाइड्स की शेप में होते हैं और ऊपर से इनकी एक टिप होती है. लेट मी टेल यू फर्स्ट द डायरेक्शंस. द अपवर्ड ऑफ इंडिया इज नोन एज नॉर्दर्न पार्ट. हियर इज नॉर्थ. द डाउनवर्ड्स इज साउथ. द लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया इज west and right side of India is east. Again we will see the north, south, west and east. ऊपर होता है north, downwards south, right hand side east and left hand side west. So the north of India lies the northern mountains or the Himalayas. इंडिया के नॉर्थ एरिया पे जो माउंटेन्स हैं वो हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड दे आर ऑल्सो नोन एज हिमालयाज. डिड यू नो स्टूडेंट्स
माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट की हाइट सबसे ऊपर है, सबसे ऊंची है। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रेंजेस? रेंजेस मीन्स वेयर a same kind of mountain exist. For example, these are the mountains. Okay, when the mountains are on the same place, एक ही प्लेस पे एक ही टाइप की माउंटेन जब एग्जिस्ट होती है तो हम इसे हिमालय माउंटेन्स नहीं कहेंगे, ये हिमालय की रेंजेस हैं। हिमालय के साथ ही और माउंटेन्स हैं जिन्हें हिमालय में ही काउंट किया जाता है, तो ये हो गई हिमालय रेंजेस। इन्हें हिमालय माउंटेन्स नहीं कहा जाएगा, इन्हें हिमालय रेंजेस कहेंगे। मैनी हिमालयन पीक्स रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। पीक होता है सबसे ऊपर का पार्ट होता है जो माउंटेन का। हिमालय का जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये थ्रू आउट ईयर, फुल ईयर में ये स्नो से कवर्ड ही रहता है। पार्ट ऊपर का जो एरिया है ये स्नो से कवर्ड रहता है और ये इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं। When the snow on these mountain ranges melts, जब इन माउंटेन रेंजेस की स्नो मेल्ट होती है, it comes down in the form of rivers such as गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। जब ये मेल्ट हो जाती है स्नो तो इनसे रिवर बनते हैं। इन रिवर्स के जो नेम हैं वो बन जाती हैं गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। These mountain ranges have thick forests of oak, pine and deodar along with a variety of animals like deer, goats, panda and tigers. इन माउंटेन रेंजेस में बहुत हैवी, बहुत थिक फॉरेस्ट हैं। उस फॉरेस्ट में इन काइंड्स के ट्रीज़ हैं और एनिमल्स हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स। Plains are large areas of flat land to the south of the Himalayas lie the northern plains. Many important rivers such as the Ganga and Yamuna flow through these plains. These rivers make the soil in the region very fertile for growing crops such as wheat, rice and sugarcane. Many people live in the northern plains. स्टूडेंट्स, प्लेन्स वो एरिया होता है लैंड का जो बिल्कुल फ्लैट होता है, जहाँ पे कोई माउंटेन, कोई हिल नहीं होती है। ये प्लेन्स भी इंडिया के नॉर्थ एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि ये नॉर्थ एरिया में एग्जिस्ट करते हैं इसलिए नॉर्दर्न हिमालयाज़ जो हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, वहाँ से जो रिवर्स बनती हैं स्नो के मेल्ट होने से, वही रिवर्स गंगा एंड यमुना इन प्लेन्स में, इन एरियाज़ में फ्लो करती हैं। इन रिवर्स से सॉइल, जो सैंड होती है सॉइल, वो फर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल मीन्स सैंड की वो क्वालिटी जिससे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। सैंड की वो एबिलिटी जिससे हम क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं उसमें। इन रिवर्स की वजह से सॉइल फर्टाइल हो जाती है। जैसे उसमें क्या क्या हम ग्रो करते हैं, जो वहाँ की सॉइल है उसमें व्हीट, राइस, शुगरकेन। और बहुत से लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में रहते हैं। Great Indian Desert. A desert is a large area of land with very little water and very few plants. In the northern western part of India lies the Great Indian Desert or the Thar Desert. This region remains hot and dry. It also receives very little rainfall. In the desert, the days are very hot and the nights are very cold. Due to the harsh weather conditions, fewer people live in this region in comparison with the northern plains. Desert क्या होता है? Let us know. Desert एक बड़ा एरिया होता है लैंड का जिस पे पानी बहुत कम होता है, प्लांट से बहुत कम होते हैं। ये जस्ट यहाँ पे सैंड ही सैंड होती है। ये एरियाज जनरली हॉट और ड्राई रहते हैं। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है एंड डे के टाइम पे ये एरियाज़ बहुत गर्म होते हैं एंड नाइट में ये एरियाज़ बहुत ठंडे होते हैं, कोल्ड होते हैं। क्योंकि इनका वेदर, डेजर्ट का वेदर बहुत हार्श है, स्ट्रेंज है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं कंपैरेटिवली नॉर्दर्न प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज़ अ फ्लैट लैंड दैट इज़ हायर देन द सराउंडिंग लैंड। द एरिया दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स इज़ कॉल्ड द पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यूज फ्लैट लैंड पे ही हायर सराउंडिंग होती है लैंड की।
Let me show you with the picture. This is the picture of plateau. Here you can see there is flat land, and above the flat land there is another flat surrounding. This kind of structure is known as plateau. The northern plains is also known as peninsular plateau. The rivers such as Krishna, Godavari, Kaveri, Narmada and Tapi flow through this region. इन एरियाज़ में जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उन एरियाज़ के प्लेट्यूज़ में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा एंड तपी इन नेम्स की रिवर्स वहाँ पे फ्लो करती हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ बॉर्डर्ड बाय हिल रेंजेस कॉल्ड द ईस्टर्न घाट्स in the east and the western ghats in the west. The Satpura and the Vindhya hill ranges separate the peninsular plateau from the northern plains. जो peninsular plateaus bordered हैं hill ranges से, ईस्ट पार्ट के जो peninsular plateaus हैं वो हैं ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्ट साइड के हैं वेस्टर्न घाट्स. इन प्लेट्यूज़ को, इन पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ को जो सेपरेट करती हैं वो हिल रेंजेस हैं सतपुरा एंड विंध्या. कोस्टल प्लेन्स, एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट लाइज नियर द सी और ओशियन इज कॉल्ड कोस्टल प्लेन. द कोस्टल प्लेन्स लाई ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. The stretch of flat land between the Eastern Ghats and the Bay of Bengal forms the Eastern Coastal Plains. The stretch of flat land between the Western Ghats and the Arabian Sea forms the Western Coastal Plains. The coastal plains remain neither too hot nor too cold. These plains are fertile for growing crops such as rice and pulses. Students, again I would like to show you coastal plains with the help of a picture. वो plains जिनके बिल्कुल साथ में ओशियंस या सी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं कोस्टल प्लेन्स. जो इंडिया के ईस्ट पार्ट में कोस्टल प्लेन्स हैं दैट आर नोन एज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, एंड जो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में कोस्टल प्लेन्स हैं वो हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स. कोस्टल प्लेन्स ना ही ज़्यादा गर्म होते हैं ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं. इन प्लेन्स पे भी लैंड फर्टाइल होती है. यहाँ पे हम किन टाइप्स के क्रॉप्स को ग्रो करते हैं? राइस एंड पल्सेस. स्किल कॉर्नर, नेम एनी 4 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द मैप ऑफ इंडिया एंड नेम द 4 कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया. आइलैंड्स. An island is a piece of land surrounded by water on all the sides. India has 2 groups of islands. The group of islands located on the western side of India in the Arabian Sea are the Lakshadweep Islands. The other group of islands located on the eastern side of India in the Bay of Bengal are the Andaman and Nicobar Islands. Students, I would like to show the picture of island first. Here you go students, this is the picture of an island. Island के around, all around water होता है. Island एक land का part होता है. Look another picture. This is also an island. Okay, because this is a part of land which is surrounded by water. India has group of islands, for example Lakshadweep and Andaman and Nicobar. इंडिया के पास आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं. इसी टाइप के आइलैंड्स हमारे पास हैं, इंडिया के फिजिकल फीचर में हैं. इन आइलैंड्स का नेम है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया के वेस्टर्न साइड में है और ये आइलैंड अरेबियन सी में है, क्योंकि लैंड के अराउंड जो सी है, जो वाटर है, वो कौन सी सी का है? अरेबियन सी का. एंड अंडमान निकोबार इंडिया के ईस्टर्न साइड पे है और इस आइलैंड के अराउंड वाटर है बे ऑफ बंगाल का. वैल्यू कॉर्नर. अ लॉट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर मेकिंग द रिवर्स डर्टी. सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू कंट्रोल इट. ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू रिवर्स का वाटर डर्टी हो रहा है. आपको 2 वेज बताने हैं जिससे हम वाटर को डर्टी होने से कंट्रोल कर सकें. बियॉन्ड बॉर्डर्स.
India shares its culture, food, dress, religion, and even some of its physical features with its neighboring countries such as Pakistan and Nepal. इंडिया अपना कल्चर, फूड, ड्रेस, रिलीजन, इवन अपना फिज़िकल फीचर भी, इवन माउंटेन्स, प्लेट्यूज़, ये चीज़ें हैं, ये फीचर्स हैं जो हमारे इंडिया के, ये भी नेबर कंट्री से